Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, hope you all are doing well and taking your video classes regularly. This is your English grammar class. Student, as you know that in the previous term we have completed Alhamdulillah lesson number 1 till lesson number 6, and now we are moving towards lesson number 7, that is present perfect continuous tense. And I want to congratulate you that we are moving towards such an advanced tense, that is perfect continuous tense, and in which we will learn about present perfect continuous, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense. So let's begin. Okay, as you can see, I have made the board for you. What is the lesson? Lesson number 7. The name of the chapter is Present Perfect Continuous Tense. Okay, students, before explanation of this tense, I am going to recapitulate what we have learned. हमने क्या क्या सीखा है, what we have learned about the tense and what is tense. Tense क्या होता है? Tense is the time, and time can be split into three parts like present, past and future. And in the subcategory of these tense we have learned about simple present tense, simple past, simple future, present continuous, past continuous, future continuous, and all the perfect tenses like present perfect, past perfect and future perfect. So Alhamdulillah, your teacher already explained you how to do what are the formulas and what are the structure of all these tense. Now we are moving. I'm going to explain you present perfect continuous tense. What is present perfect continuous tense? As I have written on the board, is used to talk about an action which began in the past and is still continuing or has just only finished. Okay, and the second use of this tense is that emphasizes the length of time, that is link between the present and past. Okay, and what is the meaning of this tense? कहाँ यूज होता है गर्ल्स ये स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सच एक्शन दैट बिगिन, जो स्टार्ट हुए हैं आपके ऐसे एक्शंस जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं एंड गोइंग ऑन और प्रोग्रेसिव हैं, कंटिन्यूइंग है, जारी हैं, या फिर अभी अभी प्रेजेंट में ही फिनिश हुए हैं, तो उन एक्शंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इस एक्शन को किस टेंस में हम उसको कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. दोबारा मैं बता रही हूँ, द एक्शन दोज एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट, जो शुरू हुए हैं, जो स्टार्ट हुए हैं पास्ट में और कंटिन्यू रहे फॉर सम टाइम, या अभी अभी कंटिन्यू भी है या फिर फिनिश हो गए हैं, तो उनके लिए वी यूज present perfect continuous tense. Okay, as the name shows you. Okay, the second use of this tense is emphasizes the length of time. What does it mean? Actually, this action is start in the past and continuing for some time and finish in the present, और present में finish होता है तो कुछ टाइम लगता है, कुछ लेंथ ऑफ टाइम तक, कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक, क्योंकि ये कंटिन्यू रहता है. तो इस एक्चुअली इट इज़ लिंकिंग प्रेजेंट एंड पास्ट. ये एक्चुअली किसको लिंक कर रहा होता है? प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस को एक्चुअली लिंक कर रहा होता है. तो इस वजह से हम वहाँ पर भी कौन सा टेंस यूज़ करते हैं जब हमें वी आर लिंकिंग प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस एंड टेलिंग द लेंथ ऑफ टाइम, एम्फेसाइजेज द लेंथ ऑफ टाइम, तो उस वक्त भी हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. Again I am repeating my word, as you there is a word continuous, and continuous as you know that what shows, क्या शो करता है? It shows the progressive और ongoing actions को शो करता है. perfect क्योंकि जो है वो कुछ टाइम के लिए स्टार्ट रहा है, तो इस वजह से जो है हमने यहाँ पर इसको perfect यूज़ किया. present इस वजह से यूज़ किया क्योंकि ये करंट उसको शो कर रहा है, करंट टाइम को शो कर रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया? present यूज़ किया. So now come to the structure. As you can see, as you know that you are familiar कि पहले हम affirmative को discuss करते, then we switch to the negative, and then in the last interrogative. Okay, what are the helping verbs here? Has and have for the present. Been is for the I'm just telling you, been is for the perfect, and fourth form tells you that it is continuous tense. So in this way you can learn it, you can remember easily. Has and have for the present tense, been for the perfect, as is the third form or the past participle form of be verb, and the fourth form shows the continuity or progressive tense को show करता है. तो this is the formula, and as you know that with the has कहाँ use करते हैं और have कहाँ use करते हैं? Has with the he, she, it and singular noun, and have with the I, we, you, they and plural noun. Okay, you have an idea about it.
Then come to the negative structure. What is the as you know that we have a helping verb. When we have a helping verb, no need to bother about the how to make it negative. It's such an easy way to make it negative. After the first helping verb you have to put not, okay, or you can say that between has and been or have and been you put not to make the statement negative, understand. And then we have an interrogative statement structure. What is the structure? Bring has and have in the beginning of the tense statement, in the beginning of the sentence, and then there is a subject, then been, and we have a fourth form that is called the present participle form, and what the remaining part of the sentence, and the last what we are going to put, which punctuation mark we are going to put. Obvious that it is clear that we have to put question mark, okay. Now okay, आपको होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. ये स्ट्रक्चर बहुत ईजी है, दैट्स वाई इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू. एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप. यहाँ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने यहाँ आई हैव ड्रॉन द टाइम लाइन हियर, सो इट विल बी ईजी फॉर यू. यू कैन ईजिली कॉम्प्रीहेंड व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू. ओके, I have been learning my lesson since morning. As you can see, as you can see in the structure, I के बाद what we are putting here have, then we have a been, then we have a fourth form that is called the ing form. The object here and the preposition that is since and morning लिखा हुआ है यहाँ पर. अब मैं आपको इसको टाइमलाइन से स्टार्ट कर देती हूँ. टाइमलाइन के थ्रू किस तरह एक्सप्लेन करेंगे. एज यू कैन सी वी हैव अ पास्ट, पहले पास्ट होता है, देन वी हैव अ प्रेजेंट एंड देन वी हैव अ फ्यूचर. एज आई सेड टू यू बिफोर व्हाइल आई एक्सप्लेन यू कि जो है ये जो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है इसमें एक्शन जो है वो कब स्टार्ट होता है, आपका पास्ट में स्टार्ट होता है, कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम एंड द प्रेजेंट, और फिनिश इन द प्रेजेंट और कंटिन्यूइंग. ओके, तो आप यहाँ देख लीजिए जो लर्निंग का एक्शन है वो लर्निंग का जो आप एक्शन है वो कब से स्टार्ट है, मॉर्निंग से स्टार्ट है. तो इट बिगिन इन द पास्ट, इट्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पास्ट से स्टार्ट हो रहा है, कंटिन्यू है, लर्निंग आपकी कंटिन्यू है, तो यहाँ तक फिनिश हो रहा है. तो यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया, कौन सा टेंस आपको यूज़ करेंगे. इट इज़ बेटर टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सो एज यू कैन सी हियर द एरो, मॉर्निंग इज़ द स्टार्टिंग टाइम, क्योंकि ये आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ है तो ये आप और कंटिन्यू रहा है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, अभी तक है. तो यहाँ पर हम कौन से टेंस को प्रेफर करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को करेंगे. देन हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल. शी हैज़ बीन, नेक्स्ट एग्जांपल इज शी हैज़ बीन लिविंग दिस हाउस फॉर 2 years. ओके, आप यहाँ पर भी स्ट्रक्चर को देख लीजिए, चेक कर लीजिए. विद शी we have has and been, then living, the present participle form, and there is a time word that is for. okay, ये time words कहलाते हैं, होते ही preposition है. इसको मैं I am going to explain you later, but पहले example को understand कर लेते हैं. क्या है यहाँ पर, the verb is living. आप देख लीजिए कितने ईयर से रह रही है, 2 years से. एक्चुअली मॉर्निंग तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन यहाँ जो 2 years है इट्स एक्चुअली शोइंग द पीरियड. ठीक है, फॉर हाउ कितनी देर से ये एक्शन जो है वो कंटिन्यू है. तो इट हैज़ बीन 2 years कि वो इस हाउस में जो है वो रह रही है. तो आप देख लीजिए कंटिन्यू इन द पास्ट, ऐसे होता है 2 years पास्ट से स्टार्ट हुआ होगा, कंटिन्यू है, अभी तक रह रही है, 2 years हो चुके हैं, तो प्रेजेंट में अभी तक जारी है. तो यहाँ पर हम कौन सा प्रेफरेंस देंगे, किस टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को देंगे. होपफुली यू अंडरस्टैंड कि किस तरह जो है हम अपने टेंस को अपनी स्पीकिंग में, अपनी राइटिंग में, और ये कब ये टेंस यूज़ होगा. बहुत सारे सेंटेंसेस आप इस तरह बना सकते हैं. व्हेन यू आर टेलिंग अबाउट समवन, अबाउट कि मैं इस स्कूल में जो है कब से पढ़ रही हूँ, तो आप क्या यूज़ करेंगे कि आई हैव बीन स्टार्टिंग इन दिस स्कूल सिंस 2000, whatever the year is. I'm just giving the example 2012, 2013, whatever. या आप अपना टाइम पीरियड बताना चाह रहे हैं कि आई हैव बीन स्टार्टिंग इन दिस स्कूल फॉर 6 years, 5 years, 10 years, whatever the time. ओके, तो ये उस वक्त होता है कि जब हमारा एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो और कंटिन्यू हो इन द प्रेजेंट. ओके, नाउ एक और चीज़ आपके लिए मैंने लिखी है, दैट इज़ द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर यू.
कि आपने प्रीवियस उसमें भी देखी होंगी वीडियोस में कि जो कंटिन्यूस जो है वो स्टेटिव वर्ब के साथ हम जो है वो उसका कंटिन्यूस टेंस नहीं बनता है। स्टेटिव वर्ब्स कौन से होते हैं जिसमें हमारी बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती है, नॉन स्टैटिक वर्ब्स होते हैं, और जो डायनेमिक होते हैं जिसमें हमारी बॉडी जो है वो क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, जिसमें हम अपनी बॉडी को मूव करके वो एक्शन शो कर सकते हैं। फॉर योर ईज, फॉर योर कन्वीनियंस मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, ये जो है, ये जो नो है, लाइक है, अंडरस्टैंड है, एग्री है, हेट है, इमेजिन, सी, और भी बहुत सारे स्टेटिव वर्ब्स हैं। ये कभी भी हम इनका जो है रिमेंबर दिस थिंग कि इनका कभी भी कंटिन्यूस टेंस हम नहीं बनाते। इस तरह नहीं होगा आई एम नोइंग, आई हैव बीन नोइंग, आई हैव बीन लाइकिंग, दिस इज इनएप्रोप्रिएट। ओके, ये बिल्कुल गलत होता है। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन फॉर यू कि कभी भी स्टेटिव वर्ब्स को कंटिन्यूस टेंस में, चाहे वो कंटिन्यूस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, सो रिमेंबर दिस थिंग। ओके, एज यू नो दैट मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल्स में बताया था, उसको मैंने हाईलाइट भी किया था कि सिंस और फॉर यूज़ हुआ है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर, ये क्या है, व्हाट आर दीज, इनको किस तरह यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको, बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ दी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ये मैंडेटरी पार्ट होता है, क्योंकि इसमें आप जो है वो क्या यूज़ करते हैं, आप एक्चुअली टाइम बता रहे होते हैं, टाइम पीरियड की कितनी देर से हो रहा है या कब से हो रहा है, ये या कोई भी टाइम फ्रेज आप इसमें पुट कर देते हैं। Yes, what are these? Since and for, they are actually preposition and used to show how long and since when an action has been taking place. Okay, यानी ये since और for कहाँ यूज़ करते हैं, अगर हम इसको इंडिविजुअली पढ़ें, since एक्चुअली पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी व्हाट इज़ द मीनिंग आपका, मैंने आपको बताया था कि ये पास्ट में स्टार्ट होगा और प्रेजेंट में कंटिन्यू रहेगा, तो ये कोई एक स्टार्टिंग इसका पॉइंट होगा जिस वक्त से ये शुरू होगा। कोई भी काम, आप जो भी कोई एक्शन है किसी एक पर्टिकुलर टाइम से, एक फिक्स टाइम से जो जब भी स्टार्ट हुआ होगा, तो वो जो है उससे पहले जब हम फिक्स टाइम की बात कर रहे होते हैं तो उससे पहले हम द प्रपोजिशन भी यूज़ सेंस यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने आपको ऑप्शन लिख दिए हैं टाइम से पहले, जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, ये दीज आर टेलिंग एक्चुअली द पर्टिकुलर टाइम, फिक्स टाइम को बता रहे हैं। डे हो गया, डे में आपके मंडे, संडे, ट्यूसडे, ऑल 7 days, एंड डेट में आपका कोई भी आ सकता है, 28 जून, 19 जून, जुलाई, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, या ईयर भी लिख सकते हैं आप, यानी 99 एज आई हैव रिटन इन द एग्जाम्पल, एज यू कैन सी 1999 लिख दिया है। और यहाँ पर आप जो है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये करके भी आप, क्योंकि ये फिक्स टाइम को, पॉइंट ऑफ टाइम को एक्चुअली शो कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उनसे पहले जब हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, हम कौन सा जो है वो प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, दिस इज सिंस। सो रिमेंबर दिस थिंग गर्ल्स कि क्या है, सिंस जो है बिफोर व्हेन वी आर टेलिंग द पॉइंट ऑफ टाइम, तो उससे पहले हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, क्या प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। देन वी हैव अ नेक्स्ट प्रपोजिशन फॉर। फॉर कहाँ यूज़ होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि ये प्रपोजिशंस आर यूज टू शो हाउ लॉन्ग एंड सिंस व्हेन। सिंस व्हेन की तो मैंने आपको बात बता दी है। हाउ लॉन्ग का मतलब ये होता है कि कब आपको कितनी देर हो गई है, आपको 2 घंटे हो गए, 3 साल हो गए, 4 दिन हो गए, 5 साल हो गए, 10 मिनट हो गए, वट एवर यू वॉन्ट टू। आपको एक इसका ये होता है कि नंबर प्लस टाइम वर्ड, आपको एक नंबर देना पड़ता है, उसके साथ उसका टाइम वर्ड देना पड़ता है। ईयर्स दे दें, डेज दे दें, मिनट्स दे दें, आवर्स दे दें, व्हाट सेकेंड्स देते हैं, वट एवर, और यहाँ पर आपके पास एक नंबर दिया हुआ होना चाहिए। उससे पहले आपके पास कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, आप फॉर यूज़ करते हैं। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन कि जो फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, जब आप हाउ लॉन्ग यानी कितने देर से ये बता रहे होते हैं कि कितनी देर हो चुकी है इस काम को करते हुए, जो भी आपका एक्शन है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल्स, फॉर 5 years, ठीक है, एज यू कैन सी टाइम वर्ड इज ईयर्स, number is 5, and for 10 minutes, for is the preposition, 10 is the number, and minutes is the time word. For a long time में भी यहाँ पर आपके पास यहाँ पर नंबर प्लस टाइम वर्ड नहीं है, यहाँ पर आपके पास सिर्फ टाइम फ्रेज है। लॉन्ग टाइम, फॉर अ वाइल, इस तरह करके भी आप, ऑल डे लॉन्ग, ये ऐसे टाइम फ्रेज कीवर्ड्स कहलाते हैं जो आप इन टेंसेस में, स्पेशली परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में और भी परफेक्ट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ मैंडेटरी, कंपलसरी होता है कि आप इनके साथ टाइम पीरियड शो करें, सिंस और फॉर के साथ लगाइए या कोई टाइम फ्रेज यूज़ कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली यू अंडरस्टूड वट एवर आई हैव एक्सप्लेन यू इन दिस क्लास। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द बुक एक्सरसाइजेस। ओके, ओपन पेज नंबर 60, I think 23.
and there is a chapter 22 page पे आपके पास है present perfect continuous. The definition is written here. The present perfect continuous tense is used to talk about an action which began in the past and is still continuing or has only just finished. Okay, and you can see the structure here. I have already explained you. Now come to exercise A. It is on page number 23. What you are going to do in exercise A, student, fill in the blanks with correct form of verbs to make present perfect continuous tense. आपको मैंने ये you are habitual to do this exercise. आपको जो है वो कौन से tense में इसको convert करना है present perfect continuous tense में. The first sentence is that the criminal dash commit serious crimes since 1999. Okay, what is the meaning of criminal? It's वो corrupted person जो होता है criminal यानी मुजरिम को कहते हैं. And there is a verb. What is the verb in the bracket? Commit है. Okay, and you what is the instruction given in the question? You will have to change present perfect the statement into present perfect continuous tense. As you know that what are the helping verb? The criminal. As you know that. Criminal is singular, so what is the helping verb? Yes, has use करेंगे. Then what comes after has? Been. And for as you know that continuous के लिए हम progressive tense use करते हैं, progressive form use करते हैं. So what will be the form of verb? Committing. Has been committing. So what will be the sentence? The criminal has been committing serious crimes since 1999. Okay, now we have come on the third statement. I am leaving the second one. They dash play hide and seek for 2 hours. As you know that hide and seek is the name of the game. And what is the verb given in the bracket? Play. So what is the to make it present perfect continuous? We have. As you know that day के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? Have यूज़ करते हैं. Followed by been and then progressive or continuous form of the verb play, that is playing. Okay. Okay, students, in the same way you will have to complete this exercise. Very easy, very exciting for you. Now switch to the exercise B. Change the following sentences into negative. Very easy exercise. You can just do in a minute. आप 1 minute में कर लेंगे. What is the? You will have to only use not between the have or been or has or been. Okay. So what will be the negative of this sentence? They have been collecting stamps since the beginning of the year. Okay. So what will be the negative statement? They have not been. So I have completed the statement. They have not been collecting stamps since the beginning of the year. In this way, you will have to solve the remaining 4. Madhya has been baking sweet cookies since morning. It has been raining for 3 days. The careless boy has been wasting his time since childhood. Baby has been crying since morning. The exercise C is change the following sentences into interrogative. आपको interrogative में change करना है. Bring the first helping verb in the beginning of the statement and don't forget to mark the question mark. Okay, it's mandatory. The principal has been announcing the results for 1 hour. तो क्या हो जाएगा? How you are going to change into interrogative? Bring has in the beginning of the statement. Has the principal Okay, students, the remaining 4 you will do by yourself. I have been living in Karachi since 2006. The discipline in charge has been warning the latecomers since 8 o'clock. He has been calling you since 4 o'clock. She has been enhancing the reputation of the company since her joining. As you can notice here one thing, with every sentence we have a preposition for, since and since. ओके सो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये ज़रूरी हैं, ये वाले टाइम वर्ड्स जो हैं वो हमें लगाना. जब हम परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो हमें ये टाइम वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं. उससे पहले ये सिंस और फॉर के प्रपोजिशन हमें यूज़ करना होता है. ठीक है. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. इंशाल्लाह आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ट्राई टू, इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, आप अगर एक दफ़ा नहीं समझ सके तो दूसरी दफ़ा वीडियो ज़रूर देखिए. सो इट इंशाल्लाह यू विल लर्न.
Note down the homework. What is the homework for today? You will have to do exercise A, B and C of lesson number 7. That it is on page number 23 and 24 पे आपकी grammar book की exercises हैं. आप कीजिएगा, बहुत neat and clean work कीजिएगा. इंशाल्लाह ताला we will meet you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.